Yeah, Okay. that is working. Yeah, 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 now it's working perfectly fine. yeah, now it will work. Okay, let's move to next. Okay, so we were talking about inertial and non-inertial frames. Mm, and then we move ahead, isn't it? So I told you like how we are going to proceed and on what basis we are going to proceed. We were trying to relate that. Okay, so basically yesterday I talked about inertial and non-inertial. Once again I will tell you, inertial frame is that frame in which the frame is moving with either the constant velocity or either it is at rest, and observer is present in that particular frame only. Means it should not be like I am the person sitting on the ground and then I'll tell about the another car or bus and something like that. I must be sitting in that particular car and then I can talk about that car. Is this clear or not? And in non-inertial frame same thing happens. If observer is sitting in that particular frame, then yeah, so that frame will be accelerating for that observer. Then this observer will feel an opposite force, which we also call it as a pseudo force. Are you able to get me or not? Okay, so based upon that, we are going to categorize and then we are going to understand. Okay, so I told you that basically I'll try to relate that H-Oma relation of that tangential and all those kind of radial accelerations. Are you able to get me or not? So looking forward for that. So see that. Okay, we'll use some too much of trigonometry and all. Are you ready for that? Totally? Okay. So see this. Let's suppose basically if a particle is moving in a circular motion. Okay. So if I want that, how I want to represent it. So basically I will just take two axes. I'll tell that these axes are x and y, x and y. Are you able to get me on? And then if any kind of particle is present anywhere, then how do we represent it? We just consider, let's suppose if the particle is present over here. So for this particle, I'll have some x and y coordinate, isn't it? If it has x and y coordinate, but the question arises that this circle has a radius r. Are you able to get me or not? So the question arises that how I can term these x and y. So basically, I know that if the body is rotating, then it will travel some angular displacement theta, isn't it? Then we say that this angle theta, basically if this is angle theta, this is also going to be my radius r. So this point P, look over here, this is my radius r, this is angle theta. So basically this length can be r sine theta and this length will be r cos theta or not. So basically the point P will have coordinate r sine r cos theta. Basically it is x comma y. So it will be r cos theta comma r sine theta. Are you able to get me or not? So that is how we represent the coordinate of a point. But then once again, every time this point will rotate, the values of theta will always rotate or not. And then you will get many such equations, many such particular things to talk about. So basically, what people thought that as we know that in circular motion the radius is fixed. What is fixed? Radius is fixed. And at every point we are aware of the tangent. Tangent we are aware. Are you able to get me or not? So people thought, let's do one thing. Let's just, instead of considering x and y coordinate, let's just make radius and tangents as coordinates. Are you able to get me or not? So basic means I'll tell you means just try to understand right now. Just capture these points. You will get to know why I'm considering this. Are you able to get me or not? Okay, so just think, see, basically they brought that instead of considering x and y as coordinate, let us consider radius and tangent as our coordinate system. Are you able to get me or not? So they told that if I consider a radius as coordinate, I'll call it as a radial frame, and then if I have tangent as coordinate, I'll call it as a tangential frame. The reason for that is
When I consider a circular motion, when I have any kind of circular motion, let's suppose if this is my circle, then at each and every moment I am particularly aware of one thing which we call it as a radius. Are you able to get me or not? And with Yeah. respect to the radius, if I know my radius, I know the tangent direction at that particular point or not, because tangent is always perpendicular to my radius. Radius. Yeah. Yes. Yes. So basically they are Yes. correlated. They are correlated just like x and y are correlated. Radius and tangent are correlated by the perpendicular frames. So that is why we can term them as a frame of reference. Are you able to get me or not? Acha. Okay. So the basic too much influence where it has a much more influence that we are going to understand that why we brought this radial and tangential frame. There is a reason for that. I'll tell you why. Okay, when I will be just doing this geometrical representation, you will see that why I brought this. So look over here. Now we are going to understand why we brought this. Okay, so let's suppose this is the center of the circle. These were their x and y coordinate, and then we have the radius which extends till over here, and then we have the tangent direction also at the same point. Are you able to get me or not? This is my direction of tangent. Okay. Now basically that will be also perpendicular to my radius, isn't it? So this is my tangent direction, and you know that every direction, let's suppose if this is x, this is y, every direction is represented by unit vector. Are you able to get me or not? So I represent radius as r cap and tangent as t cap. Are you able to get me? Okay. So then you see that basically this, if I just consider this, then this is going to be the x axis and this is going to be the y axis over here or not. Yes. Yes, and x is represented by basically what, I cap, and y is represented by in vector form as what, j cap. Jacob. Okay, now if at that instant of time this angle was theta, this angle will be also angle theta. Wait. Yeah, yeah, makes sense. Yes. Yes, alternate interior angle. Are you able to get me or not? So Corresponding angles. yeah, so basically if I have this r cap, look over here, and this angle is theta, this is I cap, I cap. and this is j cap. So So that's roughly. r cap will have two component along I cap and j cap or not. Correct. So Correct. can I just write r vector radius vector over here or not? What that will be? It has a length of r cap. Sorry, it has a magnitude. Or you can write in terms of simple. Okay, just write r cap, not r vector. So I can write r cap. R cap will be what? Magnitude of r cap into cos theta I cap plus magnitude of r cap into sine theta j cap. J cap or not? But what is magnitude of unit vector? 1. So r cap will be nothing but cos theta I cap plus sine theta j cap. Are you able to get me? Is this clear? Perfectly? Okay. So this is my one of the directions which we are considering. I'll explain this. Just think of, means just we are writing the equations, then I'll explain you why this has appeared and why we are terming it. Then you see the t cap. T cap is towards this side and this is j cap, while this is I cap. Are you able to get me or not? So basically, once again, for T cap, I'll get the equation as what? T cap will be, if this angle is theta, this will be 90 minus theta. Then T cap is also perpendicular to radius. So this angle will be also angle theta or not. So this angle is how much? Theta. So T cap has also two component. One, it will be a sine theta component towards this side, a cos theta component towards this side. So it will have minus sine theta. Directly I'm writing minus sine theta I cap plus cos theta j cap or not. Are you able to get me? Yeah. So you see in circular motion, what we did is basically, I'll show you in a next diagram in a perfect way that we did nothing. We did one biggest thing, and that is that instead of writing in terms of x and y axes, instead of doing everything in terms of x and y axes, what we did is that we made a particular radius as a
vector quantity and then a tangent as a vector quantity. Are you able to get me or not? And what is the biggest thing of this is that we didn't did anything. Still, this radius and my tangent, this radius which is r cap and this tangent which is present at that instant of time, they are still related with x and y by the formula r cap is equal to cos theta I cap sin theta j cap and t cap is equal to minus sin j cap. Are you able to get me or not? So see, this particular R cap and T cap are able to absorb that even if you are over here, there is no need to consider these thetas now because this R cap and T cap at that instant of time has already absorbed your angular displacement theta over here. Are you able to get me or not? So isn't that will be easy to write in terms of R cap and T cap because already my theta has been absorbed in that particular equation. Look over here. See, if I write anything, if I write vector A is equal to 6 r cap plus 6 t cap, that means what? The particle has radius 6 and 6 tangent over that instant of time or not? Right now, that means what? That whenever I go, this body will have unit magnitude of how much? 6. Okay, so basically I'm not required to think of this particular angle theta, that sir, what will be the coordinate over here, there, each and every point of the time. Okay, because that particular 6 r cap is observing that where it will be present according to this relation or not. Got it? इट इज हाँ मीन्स जो हम बार बार इस एक्स को लेके, जैसे इस पॉइंट का भी तुम्हें बताया, ये होगा जो फॉर्मूला आता था एक्स कॉमा वाई जो है। हाँ, तो एक्स की जो रिलेशन है वो आर कॉस थीटा है, वाई की जो रिलेशन है आर साइन थीटा। तो अब कितना बड़ा इक्वेशन, तुम सोचो अगर तुम dx, अगर मान लो dx बाई dt निकालोगे तो वो वेलोसिटी आएगा। तो हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगी ना। अब हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी निकाल के उनका मैग्नीट्यूड निकालो तब जाके रियल वेलोसिटी मालूम चलेगी ना। इससे अच्छा है अगर हमको रेडियल डायरेक्शन पहले ही इस cos थीटा और sin थीटा को एब्जॉर्ब कर लिया तो हमें मालूम चल जाएगा ना कि भाई कहाँ पे रेडियस, कहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि हमें रेडियस के बारे में पता है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है। सो बेसिकली दे आर डूइंग, सी मतलब ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो तुम एक बस में बैठे, ठीक है। ठीक, अब बस में बैठे हो, बस वाला ये जो ड्राइवर है, ठीक है। अब ड्राइवर का काम क्या है कि पीछे की चीजों को देख के आगे बढ़ेगा, है ना? है। अब ड्राइवर का अगर मैं मिरर हटा दूं तो क्या होगा? ड्राइवर थोड़ा सर बाहर निकाल के देखना पड़ेगा ना, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, है कि नहीं? अब यह यहाँ पे वही चीज हो रहा है। देखो मतलब ये जो अपन का जो ये थीटा है, ये ड्राइविंग, ये बस है, ठीक है। हम एक्स और वाई की तरह जा सकते हैं जहां पे हमारे पास मिरर है नहीं। और दूसरा ये आर कैप और टी कैप है जो हमारे एक एक्स्ट्रा मिरर की तरह प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें डायरेक्शंस को देखने में, पीछे के ऑब्जेक्ट्स को देखने में या फिर चीजों को और अच्छे तरह से समझने में हेल्प कर रहा है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? दे आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड that what can be the best possible way of understanding circular motion. Are you able to get me? And we'll see how it is done. How it is done, we are going to do that, and we are going to clearly see that what will be our biggest understanding to that. Are you able to get me or not? Okay, so I'll show you how. See, basically any radius vector will be what? Magnitude of radius into r cap, isn't it? So any radius vector at any instant of time, magnitude of r is capital R, and r cap is nothing but cos theta I cap plus sin theta j cap, isn't it? So this is my radius vector. If I differentiate it with respect to time, I'll get the velocity vector at that instant of time or not. So what that will be? R, radius is constant, so it will come outside, but theta is always variable. So differentiation of cos theta is what? Minus sin theta into, there will be also d theta by dt or not? Why? Because
This is not the same variable over here. Are you able to get me or not? Yeah. Did you know this relation that if we take d by dx of any quantity which is sine x, where x depends on sorry, where where sine x, basically this is written as cos x dx by dx, and that gets cancelled out and only we get cos x. Are you able to get me or not? No. Wait. I'll show you. Ah, right, right, right. Okay, Yeah. so this is written as cos x dx by dx. So that is why when we have different variable like d by dt of sine x, such that x depends upon time, then it is written as cos x dx by dt. Is this clear or not? Yeah. So here theta is always varying with respect to time. So I'll have theta d theta by dt or not. Yeah. And I cap it is mathematically strong, so you have to be really cautious. थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट मजा आएगा लास्ट में बहुत। लास्ट के जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे, तुम देखना खुद देखना। सो ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा d Cos थीटा theta, d theta by dt dt. j कैप। अब देखो वेलोसिटी मिली तुम्हें क्या, आर, मैं डी थीटा बाई डी टी को कॉमन ले लिया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और इससे तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा इक्वेशन मिलता है कि डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा बोलते हैं और आर ओमेगा। और ये देखो तो क्या ये मेरा टेंजेंशियल एक्सिस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इनटू टी कैप। तो इसका मतलब क्या मालूम चला कि सर अगर कोई भी आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी वेलोसिटी होगी, कोई भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज किस डायरेक्शन में होगी, टी कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में टी कैप क्या चीज का डायरेक्शन है, टेंजेंट का ना। Tangent का direction. टी कैप टी हाँ. कैप टी कैप क्या चीज का डायरेक्शन था, टेंजेंट का यूनिट वेक्टर था ना। हाँ. तो बेसिकली टी कैप रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, टेंजेंट डायरेक्शन है कि नहीं। तो मतलब अगर हम सर्कुलर पाथ पे गोल 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 घूमने लगे तो हमारी जो वेलोसिटी है वो किसी और डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में। मतलब इस डायरेक्शन में अपन का हरदम ही वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? इज दिस क्लियर? हाँ. इज दिस Yes, क्लियर? yes, हाँ. ओके। सो ध्यान Yeah. से देखो, मतलब हर पॉइंट पे जैसे तुम यहाँ पे आ गए, तो जब तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ तो वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी इधर दिखेगा। अब कितना बड़ा हाँ. कैलकुलेशन है ये यहाँ से यहाँ तक थीटा मानो, फिर वेलोसिटी निकलेगा, फिर वेलोसिटी का तुम्हें डायरेक्शन मालूम चलेगा, है कि नहीं। बट ये हाँ. टेंजेंट, ये जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर है डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लिया ना। सर क्या है, को टेंशन लेते हो अपन, ये यहाँ पे मालूम है कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हरदम किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। So then कुछ explain again. Yeah, I'll explain. Means basically, see, simple that we have two unit vectors r cap and t cap. R cap represents the radial direction हाँ. and t cap represents the tangential direction. Tangential direction. ठीक है। तो अपन ने r वेक्टर फॉर्म किया which is nothing but modulus of radius vector into r cap। ठीक। अब हाँ. मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर रेडियस होता है, आर कैप का मालूम है वैल्यू cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप। ठीक। ठीक. जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला r d थीटा बाई dt माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा j कैप। तो ये जो क्वांटिटी है माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा j कैप, ये डायरेक्टली टेंजेंट के डायरेक्शन से मैच करते हैं। Tangential. Yeah, yeah, yeah. यस। तो इसका मतलब ये हाँ. हुआ कि अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें कभी भी अगर आप वेलोसिटी ड्रॉ करोगे तो वो हर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। Tangential direction में. ये बात किसने बताया, इस डेरिवेशन ने बताया ना। हाँ जी. हाँ, हमें तो नहीं पता था ना कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं, वेलोसिटी की टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब देखो आसान हुआ या नहीं हुआ आर कैप और टी कैप में, क्योंकि जब तुम हाँ. देखोगे नोटिस करो तो इन सारे वेलोसिटीज की अलग अलग एंगल्स है ना। हाँ जी. एक्स एक्सिस के साथ ये वेलोसिटीज अलग अलग एंगल बना रहा है, तो कितना कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगा, बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। लेकिन टी कैप एक ही बार में ऑब्जॉर्व कर लिया ना कि हाँ सर कोई टेंशन नहीं है, इस पूरे सर्कल में हर पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, मैं बता दूंगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? Yeah. एसेंस समझ में आया टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का, इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, sir.
अभी और समझ में आएगा। अभी देखो, अभी अब जैसे तुमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी का फॉर्मूला आया आर डी थीटा बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई, dv by dt. यस, तो डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा कंपोनेंट आएगा आर डी थीटा बाई डी टी माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे कैप। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? Yeah. यस। तो अब ध्यान से देखो, तो बेसिकली दिस इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट टर्म एंड What the I cap is also minus sin theta I cap. yeah. So this is basically one term and this is second term or not, this is also dependent upon time and this is also dependent upon time. Are you able to get me Time. now? Yes. So Yeah. basically when I will consider the components, then what I will have to do, I'll have to use this form of differentiation now, that d by dx of u into v is nothing but u bar dv by dx plus v bar du by, dv by dx. are you Yeah. able to get me or Yeah. not? So then this A vector will come as R. I'm differentiating d2 theta by dt square into minus sine theta I cap plus cos theta j cap. After that second term, R d theta by dt, और ये माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos थीटा Minus cos. d theta by dt. Minus won't it be plus? No, no, it is previously minus, no? Huh. So just But sine theta. minus minus. Minus sign will just appear because sine theta difference is just cos theta. And cos theta differentiation will be minus sine theta once again d theta by dt j cap. Are you able to get me or not? So देखो basically Yeah. equation आता है a vector is equal to r d, तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, डरना नहीं। एकदम ऐसा लगेगा कि अरे सर क्या कर रहे हो, आज पूरी फिजिक्स में मैथ्स पढ़ा रहे हो आप। एकदम ऐसा नहीं है, भी फिजिक्स की एसेंस दिखेगी आर। और ये डी थीटा बाई फिर से कॉमन ले लिया तो बन गया डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई कैप। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, है ना? तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। जब तुम ध्यान से देखते हो तो ये कुछ नहीं बल्कि टी कैप है और ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, आर कैप। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर टी कैप, मेरे को एक बार डेरिवेशन कर लेने दो, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर आर कैप। आर एबल टू गेट मी? और डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता क्या है, अल्फा। Huh. डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर क्या होता है, अल्फा। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। So this gives us one of the best relation of acceleration in circular motion, that it is nothing but r alpha t cap minus r omega square r cap। मतलब ये जो एसेंस है जो तुमने इतने दिनों से रट्टा मारा है सर्कुलर मोशन में, वो मैंने अभी तुम्हें प्रूफ करके दिखाया कि बेटा सर्कुलर मोशन में कभी भी दो तरह के एक्सेलरेशन पाए जाते हैं। कितने तरह के? Daughter. एक basically one which is present along the direction of tangent. Look over here. This is the one which is present along the direction of tangent, and this is the one which is present along the direction. Tangent field or centrifugal. Yes. Now you got the idea or not? That Just one I is. didn't get a derivation wala part. Where you didn't got it? I didn't get a derivation wala part. Basically simple. See, velocity is equal to r d theta by dt minus sin theta I cap plus cos theta j cap. Now. Yeah. यस। तो बस मैं क्या किया, मैंने उसका वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी Yes। मिलेगा. तो मैंने डी बाई डी टी था, डी बाई डी टी, और जो फर्स्ट टर्म था वेलोसिटी का उसको मैंने कंसिडर कर लिया। अब ये भी टर्म टाइम पे डिपेंडेंट है और ये भी टर्म कैसा है, टाइम पे डिपेंडेंट। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया डी डी यू बाई डी थीटा, और जो सेकंड टर्म है उसको एज इट इज रहने दिया। आर एबल टू गेट मी और नॉट? फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट. हाँ, एक एक मिनट मैं तुम्हें अच्छे से करके दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी है,
इंटू साइन थीटा, सॉरी माइनस छूट गया, हाँ माइनस साइन थीटा। एक बार इसको अच्छे से देख लो, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे कैप है ना। आर को भी, अभी आर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, डिवाइड इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना डी बाई डी टी से। तो पहले फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टर्म को बाहर रख सकते हैं ना। तो डी इंटू डी क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। हाँ, सो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, आर यू एबल टू गेट मी और नॉट। फिर दूसरा टर्म क्या आएगा, इस बार क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बाहर चला जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, एंड देन द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म माइनस कॉस थीटा प्लस। तो अब इसका क्या होगा, वंस अगेन क्या आएगा टर्म, माइनस प्लस ले लो डी थीटा बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस, ये भी माइनस होगा ना, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट, गॉट इट और नॉट। ठीक, तो बस मैंने वही चीज किया है, फर्स्ट टर्म को पहले डिफरेंशिएट किया, सेकंड टर्म को बाहर, फिर फर्स्ट टर्म को बाहर किया है, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, आर यू एबल टू गेट मी और नॉट। तो इससे मेरे को क्या आया, आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये जो टर्म कहलाती है इसको हम क्या बोलते हैं, टी कैप, और इसको बोलते हैं क्या बेटा, आर कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो कोई भी एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में दो डायरेक्शन में पाया जाता है, कितने डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में, दूसरा रेडियस के डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर और नॉट, आर यू एबल टू गेट मी। अब देखो, अब इसी चीज को हम डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसी से आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो ध्यान से, तो बेसिकली for any kind of particle in a circular motion, okay, इसको हटाएं दो, इन दोनों लाइन को जरूरत नहीं है। For any kind of particle exhibiting circular motion, okay, if I have the velocity in this particular direction, मतलब if this is my radius and this is the direction of tangent, okay, this is my radius vector and that is my direction of tangent vector, are you able to get me or not, this is r cap, okay. So basically, nothing is there to confuse about. Velocity will be only found in the direction of tangent. Where is the direction of velocity? Tangent. Okay. And acceleration has two directions. How many directions? Two. One along the direction of tangent, which we call it as tangential acceleration. And इसकी value कितनी होती है? R alpha t cap. Are you R alpha. So basically alpha is d omega by dt also. So R d omega by dt, or it is also d2 R into d2 theta by dt square. Are you able to get me or not? Is this clear or not? And at the same time, I have the particular radial acceleration also. What acceleration? Radial acceleration. You see over here, this in r cap there is a minus sign. Look over there. In r cap there is a minus sign over there or no? Yes. So basically we were considering r cap outside. So minus represents what? Inwards or not? So basically, for any kind of particle in a circular path, it feels always and one acceleration present towards the center of the circle, and we call this acceleration as centripetal acceleration. क्या बोलते हैं? Are you able to get me or not? And what is the formula for that? R omega square. Is this clear or not? So R omega square. Yesterday also we got to know that omega is nothing but V is equal to omega cross r. Are you able to get me or not? So simply v is equal to omega r, because here velocity is perpendicular to my radius.
So basically, omega can be written as velocity by my radius or not. So when you take, it will be what? V square by r. So radial acceleration has two formula, while tangential acceleration has how many formula? Three formulas. Is this clear or not? Understood? Okay. So look over here. If this is what is the difference, what creates the condition for non-uniform circular motion and uniform. Are you able to get me? So this is where the difference is created. Okay. That in uniform circular motion, what is basically zero is this tangential acceleration is zero. Look over there. This tangential acceleration is basically zero for which kind of acceleration? Uniform circular motion. Okay. Now you look over here. If tangential acceleration will be zero, then this velocity will always remain constant or not? Yeah, sorry. It will not be zero. It will be always what? It will be always what? Constant, isn't it? Because there is no Yeah. acceleration present in that particular direction. Remember that only the acceleration present, कोई भी component acceleration का present हो, acceleration present along velocity can only change velocity. Okay. Yeah. Are you able to get me or not? Acceleration which is present along the direction of velocity can only change my velocity. Is this clear or not? Otherwise, it's not possible to change it. Okay. So if tangential acceleration is zero, velocity will remain constant. Then you see that the radial acceleration will be zero for that. Radial acceleration will not be zero. Radial acceleration will not be zero, and this will be also remaining constant. Are you able to get me or not? Constant. Yes. Why? Because velocity is constant for our uniform circular motion or not. Yeah. Okay, so basically this is the condition that if we have uniform circular motion, then tangential acceleration is zero, velocity remains always constant, and as we know that radial acceleration is nothing but minus v square by r cap. So this remains also always constant. Basically in kinematics we got to know that if acceleration is non-zero, it is a non-uniform motion. But in circular motion it is opposite. If the velocity is constant, then radial acceleration is still present. That makes the circular motion to be uniform. Means the motion with uniform omega. Basically, the meaning of uniform circular motion is uniform angular speed, and that is only possible if radial acceleration is constant and velocity is constant. Are you able to get me or not? Understood totally? Yes. And non-uniform circular motion is that where tangential acceleration is not equal to zero. The radial acceleration will be then always varying. है कि नहीं? Because my velocity is this time always varying. Are you able to get me? So in non-uniform circular motion, basically the tangential acceleration can be constant, but radial acceleration will always vary. Are you able to get me or not? Why? Because velocity at each and every point is changing at the moment. Are you able to get me? Totally. So all these are the conditions of non-uniform. So look over here. Acceleration is varying. So whenever if we see at each and every point, there is, this implies I have different velocity, which implies different radial acceleration. So are you able to get me or not? Totally, are you able to get me? Okay. So this was all related with the tangential acceleration and radial acceleration and
your velocity and your everything in the circular motion. Understood or not? Yes. So now we will have the last equation of this particular class, and then I'll give you some numericals. Okay. So basically, when I have in the condition of uniform circular motion, there is no need to think too much. But in case of, if I have the particular case of non-uniform circular motion, as I know, I have two acceleration at the same instant of time, isn't it? One is the particular radial acceleration, another one is particular tangential acceleration. So basically, I will get a resultant of these as a resultant acceleration or not. I'll call it as A. It just A. AT represents tangential, AR represents radial. So this is my resultant acceleration. So this is radial, this is tangential. Then net acceleration will be nothing but tangential acceleration square plus radial acceleration square or not. Are you able to get me? So basically, you can use any formula. Whatever is given over there, you can use any formula, and then you can find a net at any point. So in non-uniform circular motion, you can also say that a net is different at each point. Why? Because radial acceleration is different at each point. मजा आया? कभी तुमने ऐसा पढ़ा था क्या? ऐसे कभी नहीं? ओके, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए नेट. अब देखो, अब ये जो ए नेट है ना, ये ए नेट देखो एक एंगल बना रहा है इस पर्टिकुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, है ना. आई कॉल इट दिस एज, ठीक है, थीटा. तो बेसिकली एनी थीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय tan थीटा. tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए आर हो गया एंड बेस क्या हो गया, 8. बहुत लोग थीटा ए आर के साथ निकालते हैं तो वहां पे 80 परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए आर क्या हो जाएगा, बेस. आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? मेरी बातें समझ में आ गई क्या? बस इतना ही दूर था. अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं. तो बेसिकली, okay, basically we are now approaching. So we got to know that there is nothing but in circular motion, if it is a, any kind of particle is there, okay, if any kind of particle is there which is doing any kind of circular motion with uniform angular velocity omega. Are you able to get me or not? Then for that kind of particle, whichsoever is that particular particle which is doing any kind of uniform circular motion, okay, which is doing on this particular line any kind of uniform circular motion starting from here or something like that, then this particular particle is definitely having a radial acceleration at that time, and we call this as which kind of acceleration, centripetal. ठीक है. तो basically if I have any kind of centripetal acceleration, if there is mass m, so this mass m will also feel a force towards this side or not, and then we call that force as centripetal force. Are you able to get me? ध्यान से देखो, basically this radial acceleration was measured with respect to an center which is fixed over origin over here or at 0,0 or not. You see, all these derivations were done with respect to origin, isn't it? So basically, if I do with respect to origin, you know that in circular motion, this origin of ours is always going to remain fixed. Basically, that means at rest. Are you able to get me or not? Is it at rest or not? This origin is at rest. So ध्यान से देखो, अब तुम inertial frame और non inertial frame पे जाओ. So basically अगर हम कोई भी फ्रेम को रेस्ट पे रख दें और उसके अंदर ऑब्जर्वर के बारे में देखें, तो बेसिकली दैट फ्रेम बिकम्स inertial frame or not? So look over here. Here my observer is this mass m, who which is observing our circular motion. This mass m is my observer. Are you able to get me or not? Or you can say that if you look into this mass m and as you are measuring with respect to an origin, basically this origin is fixed and at rest. So if I keep any kind of observer over here, मान लो एक चीटा को मैंने origin पे बैठा दिया,
है ना? तो बेसिकली ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे हुआ या नहीं हुआ? और हाँ, उस ऑब्जर्वर के लिए इस मास एम के ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। तो बेसिकली दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉट? Yes. व्हाई? It's okay. It's Yeah. okay, Ajay. Yeah. I'll definitely, I'm going to definitely again explain it once again. सिंपल सी बात है कि भैया हमने एक मास को देखा सर्कुलर मोशन को करते हुए, है ना? जिसके ऊपर हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है? अब मालूम है कि हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेडियस होती है। किधर होती है? लिख लो। towards the radius. टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द सेंटर बोलते हैं इसको, सॉरी, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? Then, ठीक। तो देखो, टुवर्ड्स द सेंटर जो मेजर हुआ वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर हुआ। हाँ, तो अगर मैं किसी एक ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे बैठा दूं, तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये बॉडी के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर कैसा है? रेस्ट पे। हाँ, आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? और कोई भी ऑब्जर्वर जब बॉडी को ऑब्जर्व करे, तो बेसिकली वो ऑब्जर्वर इनर्शियल, अगर वो ऑब्जर्वर फिक्स है तो वो इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाता है ना? हाँ, ठीक। तो ध्यान से देखो, मतलब समझो जरा, ये हो गया तुम्हारा चीटा, है ना? चीटा कैसा है? इसकी रफ्तार कैसी है? जीरो। ठीक। और चीटा हाँ, इस मास एम को देख रहा है, तो बेसिकली वो देखता है कि इस मास एम के पास एक एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट है कि नहीं? और कौन सी वो एक्सेलरेशन है? रेडियल। radial. कौन सी एक्सेलरेशन? रेडियल। जिसकी वैल्यू क्या है? माइनस V squared by R. वी स्क्वायर बाई आर, आर कैप, या फिर ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, आर कैप। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो ये जो मेजरमेंट ली गई विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ली गई ना, हाँ, so basically, can we say that centripetal is that particular acceleration which is present due to an observer at rest? yeah, yeah, we can We say can that. say, तो बस ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट का दूसरा नाम क्या है? इनर्शियल ऑब्जर्वर। बस बात खत्म। That centripetal acceleration is nothing but an acceleration measured with respect to an observer at rest fixed at center, and that observer can be also treated as or called as inertial observer. बात खत्म। Are you able to get me or not? Yes, sir. मजा आया क्या? फील आया? Yes, sir. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई भी तुमसे पूछे कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, तो सर कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो बस ऑलवेज, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करेगा, तो उस बॉडी के ऊपर हर पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन आएगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर उसको खींच के लेके जाएगा। आर एबल टू गेट मी और नॉट? Yes, sir. है ना? तो जो भी एक्सेलरेशन वो वहां पे उस समय प्रेजेंट है, उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Acceleration. बस। तो हरदम ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है? तुम अगर तुम देखोगे तो जैसे दूसरा एग्जांपल और क्या ले सकता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? कोई ऐसा एग्जांपल, हाँ। एक बात बताओ, जब साइकिल वाले को देखते हो, साइकिल वाला जैसे ही सर्कुलर ट्रैक पे आता है, तो वो देखना, वो इधर की, वो सेंटर की तरफ टर्न होता है या नहीं होता है? हाँ, क्यों? क्योंकि उसको बॉडी हरदम उसको किधर की ओर खींच रही है? सेंटर की तरफ खींच रही है या नहीं खींच रही? तो हाँ, अगर मान लो, center की तरफ। वो दूर, अगर मान लो इधर की ओर सेंटर है, अगर इधर तरफ बेंड नहीं हुआ, अगर इधर तरफ बेंड हो गया, तो स्किड करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? करेगा। इसका मतलब हर उस टाइम पे बॉडी के ऊपर क्या लग रहा होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। बस बात खत्म। आर एबल टू गेट मी ऑन? Yes. मेरी बात समझ में आई? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई भी सर्कुलर पाथ के लिए हरदम ही कंसिडर होगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो हरदम प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर बॉडी को क्या करना है? सर्कुलर मोशन करना है। क्या करना है? Circular motion. इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. अब सेकेंड पॉइंट आता है कि सर हम ये मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? तो हम एक मेजरमेंट उस ऑरिजिन से कर रहे हैं जो कि फिक्स्ड है। अब उस ओरिजिन फिक्स्ड है, तो वहां पे अगर मैंने ऑब्जर्वर बैठा दी तो ऑब्जर्वर भी फिक्स्ड हो। तो बेसिकली हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस ऑब्जर्वर के बेसिस में निकाला? तो फिक्स्ड ऑब्जर्वर। और फिक्स्ड ऑब्जर्वर का दूसरा नाम क्या है? इनर्शियल ऑब्जर्वर। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट पर्टिकुलर फोर्स which is present towards the direction of center with respect to and which observer? Inertial observer। किस रेस्पेक्ट में? Inertial observer. किस रेस्पेक्ट में है? इनर्शियल ऑब्जर्वर। Inertial observer के respect में।
बस, आर एबल टू गेट मी और नॉट? Yeah. ठीक, तो आगे बढ़ूं मैं? Yeah. Okay, बोलो. ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, मैं बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये बात तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा एडिक्ट होने में, मुझे लग रहा है ना? हाँ, तो ये चीज है मेरे साथ, मतलब अगर पढ़ना है, मतलब यू विल हैव टू बी फास्ट, राइट और नॉट? बिकॉज दैट्स व्हाई इमरान सर वाज टेलिंग अनुराग, you go slow, otherwise how much fast you works you will not be able to digest. ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात, अब दूसरा चीज देखो, अब बहुत अच्छा चीज, अब तो मतलब मैं प्रो लेवल पे अब आ चुका हूँ, मतलब इसको बोलते हैं ना कि सर्कुलर मोशन का प्रो दिखाना है ना, वो मैं दिखाता हूँ अब इस चीज को बोलते हैं प्रोनेस, जो अभी मैं तुम्हें बताने वाला। ठीक है, अब मान लो एक थ्रेड लिया, एक थ्रेड से मास एम को अटैच कर दिया है ना, और सेंटर पे फिक्स कर दी। ठीक, और इस मास एम को एक ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड की मैंने, मान लो कोई भी वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी तुम्हें माननी है, कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, तो बेसिकली, वन मिनट, अब बेसिकली ये बॉडी कहाँ जाएगा? अगर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, थ्रेड फिक्स्ड है, तो बॉडी गोल 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 चक्कर खाएगा, है कि नहीं? आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है कि सर जैसे ही आपने वेलोसिटी लगाई, अब हमें एक बात समझ में आई कि जो भी मास है ये सर्कुलर मोशन में एग्जिबिट कर रहा है। तो बेसिकली हम ऐसे, अगर हम नॉर्मल एक ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, तो हम क्या सोचेंगे कि अरे इसके तो ऊपर टेंशन भी तो लग रहा था ना, इसको तो अंदर जाना चाहिए था, लेकिन अंदर जा रहा है क्या? नहीं ना, नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक बाहर फोर्स लग रही है ना? तो उस फोर्स का नाम हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम देते हैं? अब क्वेश्चन आता है ना कि सर अराइज कैसे होगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी तक तो आपने बताया नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल होता कैसे है। तो कुछ नहीं, बस अब समझो, ये ब्लॉक है, ठीक, ये ब्लॉक ऑफ मास एम। अब इस बार मैंने एक चीटे को मास एम पे बैठा दिया। कहाँ बैठाया? मास एम पे, है ना? तो एक बात बताओ, अगर तुम गाड़ी को देखो, कार जब ड्राइव करते हो, तो इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, और जब कार सर्कुलर टर्न पे आती है, तो तुम गाड़ी के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर बेंड करते हो या अवे फ्रॉम द सेंटर बेंड करते हो? अवे बेंड करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे ही मैंने चीटा इस ब्लॉक के ऊपर रखा, और ये चीटा इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कैसा है? रेस्ट में है। कैसा है? कैसा है? रेस्ट में। लेकिन एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, तो उसके ऊपर तो एक ना एक रेडियल एक्सेलरेशन तो लगेगा ना हरदम। तो ये चीटा चीटा के ऊपर एक रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन चीटा कैसा है? रेस्ट में या मोशन? अभी 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 इस टाइम पे अभी चीटा कैसा है? रेस्ट में है या मोशन में? अभी तो रेस्ट में है ना, चीटा फिक्स्ड है यहाँ पे। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो चीटा अगर फिक्स्ड है, तो उसको क्या करना होगा? उसको ये जो फोर्स आ रही है रेडियल एक्सेलरेशन, इस मास एम के ऊपर एक फोर्स बाहर लगा के, इस एक्सेलरेशन को बाहर लगा के बैलेंस करना होगा ना। देखो सिंपल सी बात है, मैं अभी बताता हूँ, अभी ये पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, सिंपल सी बात। देखो, अच्छा जब गाड़ी में बैठते हो, तो गाड़ी में अगर अगर मान लो सीट और दरवाजा नहीं रहता, और गाड़ी बहुत तेजी से जाती, तो तुम बाहर फेंक दिए जाते, है ना? तुम सीट पे कैसे हो? बैठे हुए हो, फिक्स्ड हो, है कि नहीं? वैसा ही अपन का चीटा है बेचारा। चीटा जो है वो कैसा है? फिक्स्ड। कैसा है? फिक्स्ड। और चीटा की मास बहुत ही नेग्लेजिबल है। कैसी है? नेग्लेजिबल। ठीक, तो सिंपल सी बात है भैया, अगर आपने दोनों मासेस को ऐसे अगर दौड़ा दिया, तो ये जो चीटा है, चीटा भी तो रेडियल एक्सेलरेशन फील करेगा,
लेकिन चीटा मेरा क्या सर्कल के अंदर ऐसे जा रहा है क्या, इस मास एम के ऊपर ऐसे चीटा प्रेजेंट है ना, ये चीटा क्या इधर की ओर जा हाँ, रहा है? नहीं, नहीं नहीं नहीं, चीटा तो कैसा है, उसके बाहर से रेस्ट पे है, खींच रहा है। चीटा तो रेस्ट पे है ना। हाँ यस, तो अगर चीटा को रेस्ट पे रहना होगा, उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ऑलरेडी लग चुका है, तो इस मास एम के ऊपर इस चीटे को क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो एक बाहर वाला फोर्स लगाना होगा ना, हाँ, ताकि उस वो बैलेंस कर सके ताकि और ये सही पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए। इक्विलिब्रियम। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? हाँ, इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये जो बाहर वाली जो एक्सेलरेशन आई इस मास एम के ऊपर, क्या वो सेम एक्सेलरेशन ऐसा एयर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, बताओ? लगना चाहिए। बस इसी रेडियल एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अच्छा। गॉट इट? हाँ तो देखो, जो एक्सेलरेशन चीटे के लिए अंदर लग रहा था वो मास एम के लिए कैसा लग रहा है, बाहर, लेकिन किस फ्रेम में, चीटे के फ्रेम में। चीटी के फ्रेम पे। क्या चीटा मेरा एक्सेलरेटिंग फ्रेम है? चीटा के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। तो चीटा एक्सेलरेटिंग फ्रेम हुआ ना। हाँ हुआ। और एवरी एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम और नॉट? ध्यान से देखो, यस। एवरी एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज विच काइंड ऑफ फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसका मतलब क्या मालूम चला कि सर, अगर आपने इस मास m का जो रेडियल एक्सेलरेशन बताया है, वो अगर आपने चीटा के रेस्पेक्ट में बताया है, और इसीलिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो मेजर होता है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से। कैसे? नॉ मुझे समझ क्या आया नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से कैसे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बस बता रहा हूँ, देखो सुनो, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि देखो, अभी हाँ अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, अभी मेरे को क्या समझ में आया कि बॉडी चल रहा था, अभी इतना दूर तो क्लियर है ना, सिंपल सी बात। हाँ अभी मैंने थ्रेड लिया, मास एम को अटैच किया, ठीक, ये सेंटर को पकड़ा, बॉडी चल रही थी वेलोसिटी v से, है ना, बॉडी की रफ्तार कितनी थी हाँ बाहर की ओर, वेलोसिटी v। तो मालूम है कि अगर मैंने बोला कुछ नहीं करो सर, मैंने तुम्हें चमकाने के लिए बोला कि यहाँ पे चीटा बैठा दो, ठीक, तो चीटा अगर बॉडी, कोई भी बॉडी वेलोसिटी v से चलेगी तो चीटा के पास भी तो रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा ना, तुम्हें मालूम है सर्कुलर मोशन में क्या लगता है, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन। तो उस चीटे के लिए ये जो मास m है उसके लिए जो एक्सेलरेशन लगा वो कैसा लगा, बाहर लगा, रेडियल एक्सेलरेशन सेम अमाउंट का, बाहर। बाहर। है कि नहीं, हाँ क्योंकि हमें मालूम है कि मतलब अभी बस बाहर लगा सेम अमाउंट, आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो यस। बेसिकली इस एक्सेलरेशन, जो बाहर एक्सेलरेशन लगा मास m के ऊपर, इसी का नाम है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये मैंने बताया अभी, है ना। हाँ बताया। तो देखो, बेसिकली तुम बोल सकते हो क्या कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन उस ऑब्जर्वर, ये देखो, ये चीटे के रेस्पेक्ट में मेजर हुआ ना, with respect to an, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हाँ सेंट्रीफ्यूगल। with respect to an observer which has acceleration already, यस सर। isn't it? यस। Acceleration already। और तुम्हें मालूम है या। कि कोई भी ऐसा ऑब्जर्वर जिसके अंदर क्या आ जाए, ये स्पेलिंग क्यों मैं बार बार गलत लिख रहा हूँ, ALREADY, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वर जिसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाए, वो बेसिकली ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाता है ना, यस। है कि नहीं? हाँ आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? तो बस हम बोल सकते हैं ना कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन which is measured with respect to non-inertial observer. Are you able to get me or not? यस Understood? यस। तो देखो, अभी मैं अब तुमको दोनों की मेजर डिफरेंस बता देता हूँ। तो कुछ नहीं था बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला सेम होती है, वी स्क्वायर बाई आर माइनस वी स्क्वायर बाई आर, आर कैप ओमेगा स्क्वायर माइनस आर का।
minus omega square r r cap, isn't it? और प्रेजेंट कहाँ रहता है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये देखो ये कहाँ प्रेजेंट है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंटर। सेंटर। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हुआ? हाँ सर्कल हाँ, सर्कुलर। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, हम क्या देखते हैं? हम बेसिकली वी ऑब्जर्व दैट दिस टाइम ऑल्सो जो चीटे के ऊपर लग रहा था रेडियल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी थी? बी स्क्वायर बाई माइनस बी बी स्क्वायर बाई स्क्वायर आर का बाय है, और माइनस आर माइनस कैप। ओमेगा स्क्वायर आर का, इजंट इट? या अब ये बाहर लेने लगा, ये भी तो ए आर ही है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी वैल्यू कितनी होगी? वी स्क्वायर बाई आर, एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब माइनस का साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दैट विल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन That will be बेसिकली। in the opposite direction basically. So nothing is changed. These are nothing. Centripetal, centrifugal are nothing. Just they have the, these are the basic requirements of a circular motion. Agar if you are doing a circular motion, you will have one component of v square by r or omega square r always present on the body. Are you able to get me or not? ये क्या है? यस ये एक्सेलरेशन है। अब जब हम ऑब्जर्वर सेंटर के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी और इसका नाम पड़ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब हम ऑब्जर्वर खुद एक चीटा बन के ब्लॉक पे बैठ जाएंगे, मींस एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये एक्सेलरेशन का नाम पड़ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? यस इज दिस क्लियर और नॉट? तो यस। बेसिकली किसी भी पार्टिकल के ऊपर जब भी तुम बाहर एक्सेलरेशन ड्रॉ करते हो, तो किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हो? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और नॉन बेसिकली इनर्शियल। जब तुम अंदर की ओर एक्सेलरेशन ड्रॉ करते हो, तो किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हो? ओरिजिन के रिस्पेक्ट इनर्शियल। में। इनर्शियल, ऑलराइट। दैट्स द डिफरेंस। So can we say that the magnitude of centripetal and magnitude of centrifugal is always same? यस सर। It is always same, but the direction is different because we are measuring with respect to different observers. यस। मजा आया? हाँ। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तुम ऐसे समझो अभी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल किसको बोलते हैं? हाँ। ऐसा समझा था क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में? नहीं मतलब इतना क्लियरली नहीं। ना क्लियरली नहीं। और यही चीज तो नीट पूछता है तुमसे, है कि नहीं? हाँ जी जरूर। हाँ, हाँ तो हाँ। बस अब हमें क्या करना है? हमें सारे क्वेश्चंस, हमें कुछ नहीं करना है बेसिकली। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों का काम एक ही है कि पहली बात तो ये समझ लो कि ये दोनों जो फोर्सेस है ना, ये अपियरिंग फोर्सेस है। मतलब अगर सर्कुलर मोशन हाँ नहीं करोगे, तो ना तो ये सेंट्रीपिटल आएगा, ना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो क्या तुम बोलोगे इन दोनों को रियल फोर्सेस? नो, दे आर नॉट फोर्सेस, दे आर अपियरिंग फोर्सेस। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? मतलब I didn't understand what is appearing force. Appearing force, you see, if you do not do circular motion, is this v square by r term is going to be possible? No, No, no. it is not going to be possible, isn't it? So basically that is why they are called as appearing forces, because if I do not do these, then there is no ar, no tr, there will be only just one force, which is going to be my tension. Are you able to get me or not? Yes, sir. So basically that's why we call these as appearing forces, क्योंकि इन दोनों के वजह से ही, मतलब अगर अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है, तो इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए हम लेकर आते हैं कि भैया, अगर बॉडी के अंदर टेंशन है, तो बॉडी तो हरदम पीछे की ओर अट्रैक्ट होगी, तो इससे अच्छा है फोर्स लगाओ जो इसको बैलेंस करेगा। लेकिन तभी बैलेंस करेगा जब हम बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, है ना? हाँ इसका हाँ। बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। हाथ में एक 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 धागे में जस्ट टेक अ थ्रेड एंड टाई अ स्टोन टू इट, गो इट और नॉट, एंड देन यू ट्राई टू रोटेट इट बाय योर हैंड्स, तो देखना, जब कम वेलोसिटी रहता है तो वो थ्रेड नीचे गिर जाता है ना, हाँ लेकिन ज्यादा वेलोसिटी से तुमने घुमाया तो गोल 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 घूमने लगता है, नहीं घूमता? हाँ। तो बस इसका मतलब क्या समझ में आया? कि भाई, अगर आपने वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, तो बॉडी के पास ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज नहीं है। आर एबल टू गेट मी? यस सर। यस, इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। मजा आया? हाँ। ठीक। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल both are appearing forces.
ठीक है, not the balancing forces. So you know centrifugal drives. Just change it to centrifugal. Is this clear or not? Yes. मेरी बातें समझ में आई? Yes, sir. टोटल ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था। और हमें न्यूमेरिकल क्या, कौन से ऑब्जर्वर को बनाना है हर बार, किस ऑब्जर्वर को मान के, ए नॉन इनर्शियल, क्योंकि हमें देखो नॉन इनर्शियल मानेंगे ना तो बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें दिख जाएगा कि हाँ भाई इसके ऊपर एक एम वी स्क्वायर आई बाई आर का जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो इससे मतलब क्वेश्चन, एक स्यूडो फोर्स रहेगा जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत अच्छा। तो देखो बेसिकली सिंपल सी बात है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी फ्रेम एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करेगा ना तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन लगेगा। आर एबल टू गेट मी? और इसी का नाम है स्यूडो एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट अ स्यूडो फोर्स आल्सो। हाँ जी। गॉट इट? बहुत सारे कंक्लूजन एक साथ आ गए। आर एबल टू गेट मी और नॉट? या तो ध्यान से देखो, जब तुम चीटा को देखते हो चीटा सेंटर के अंदर जा रहा है तो वहां से कहाँ जाना चाहिए, सेंटर से बाहर। बाहर। ठीक है, यस। ओके। सो कैन वी मूव ऑन टू नाउ हाँ। क्वेश्चंस प्लीज? ठीक। यस। तो बेसिकली हाँ। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को फोर्सेस मिल जाएगा ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहलाएगा? हाँ जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम ओमेगा स्क्वायर आर। और सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अलग अलग। ऑपोजिट होगी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत लोग बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों को जज करने के लिए। अब एक बात बताओ, क्या किसी भी टाइम पे बोथ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल प्रेजेंट रह सकता है क्या? क्या? हाँ। नहीं, हाँ। रह सकता है। मैंने क्या बोला, सुनो क्वेश्चन अच्छे से, कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डज दिस टू फोर्सेस कैन अपीयर एट द सेम टाइम ऑन द सेम पार्टिकल? नो। नो। टेल मी व्हाई? हम्म। अरे बाबा, देखो इस मास को जब तुम देख रहे हो तो दोनों बार में अलग अलग ऑब्जर्वर है ना, हाँ। और दोनों अलग सेपरेट। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग फोर्सेस हैं, है कि नहीं? तो हाँ। बेसिकली हम मास के ऊपर अगर एक फिक्स्ड ऑब्जर्वर रहते हैं उसमें ये फोर्स रहता, और दूसरे केस में सेकंड फोर्स ये रहता, उसी ऑब्जर्वर के लिए तो दोनों फोर्सेस आ सकते थे, लेकिन दोनों तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए है ना। तो एक बार में एक ही ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सारी मेजरमेंट करोगे ना। समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, मान लो मैं ये मास एम हूं, है ना, मैं इसको थ्रेड से अटैच करती हूँ। तो पहला बार मान लो तुम अभी ऑब्जर्वर सेलेक्ट किए, ये वाला यहाँ पे बैठा हुआ है एक ऑब्जर्वर जिसके रिस्पेक्ट में तुम मेजर कर रहे हो। तो जो भी चीज हाँ। मेजर करोगे वो फर्स्ट टाइम, या जो भी चीज होगा वो वन टाइम इसी के रिस्पेक्ट में मेजर होगा ना, उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन हाँ। होगी ना। जी जी। ठीक। अब अगर तुम सोचो, क्या इस टाइम पे मास एम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिल कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास तो नहीं। ऑब्जर्वर यहाँ पे सेंटर पे बैठा हुआ है ना। लेकिन हाँ। सेकंड केस को ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड केस को कंसीडर करूं, जब मैं मास m के ऊपर ही ऑब्जर्वर को बैठा दिया तो उसके लिए कहाँ लगा फोर्स, बाहर। लेकिन उस टाइम पे बाहर। अंदर फिल कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक ऑब्जर्वर के नहीं। रिस्पेक्ट में एक ही फोर्स आ सकती है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? बिकॉज यस सर। both of these two forces are of two different nature. Are you able to get me? So that is why they यस can't appear at the same instant of time on the same particle. Okay. यस सर। आई गॉट इट नाउ। So you have to mention it. Centrifugal force and centrifugal force cannot appear
on the same particle at the same time on same mass as both forces are of different nature. Okay, are you able to get me or not? Yes, sir. ठीक है, मजा आया, फील आया? आगे बढ़ो। ठीक है, चलो, these were all about all these points, basically how do we relate it, how do we do the things, and then तुम्हें जो ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं थोड़े अलग से करवाऊंगा, है ना, एक वर्कशीट के थ्रू डाउट सेशन में। इज दिस क्लियर और नॉट? लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर का मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो हम्म, एक रॉड है, ठीक है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देयर इज अ रॉड, ठीक है, ऑफ मास m, ठीक, एक रॉड है, सॉलिड रॉड, ठीक, जिसकी मास कितनी है m और लेंथ कितना है l, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस रॉड को इस पॉइंट पे फिक्स कर दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और गोल गोल ओमेगा से घुमाने लगा। क्या चीज, किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया? ओमेगा से। तो ये मास, ये जो रॉड है ऐसे एक सर्कल बना के गोल 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 घूमेगा ना? यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास तीन पॉइंट्स हैं इस मास एम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड देन पॉइंट सी। Okay, so your options are omega of B is exactly equal to omega of C, and that is exactly equal to omega of A. Option B, omega of C must be less than omega of B. Omega of B must be less than omega of A. Option C, omega of C will be more than omega of B, will be more than omega of C. And option D, none of this. Tell me which option is correct. Um, so what it will be? सोच के बताओ, सोचो। बताओ क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, तुम बी बोल रहे हो, कंफर्म हो? बी पे लॉक करो तुम्हारे लिए, ऑप्शन बी यूर सेइंग। हाँ, सो सृष्टि इज सेइंग ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ, मैंने गलत स्पेलिंग लिख लिया है ना, जो भी है, ठीक है। एस आर इज सेइंग, सृष्टि इज सेइंग ऑप्शन बी, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, तुम क्या बोल रही हो कि जो सर सी है ना, सी जो है वो गोल 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 ये जो चक्कर मार रहा है, इसकी ओमेगा और बी की जो ओमेगा है, और ये ओमेगा ऑफ ए मान, ठीक है। तो ओमेगा हाँ, ऑफ सी इज मोर देन ओमेगा ऑफ बी, एंड दैट इज मोर देन ओमेगा ऑफ ए, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, जरा ध्यान से सोच के बताओ, मतलब मैं कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं पूछता हूँ, मतलब इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अपन ने क्या बोला, सारे अपन क्वेश्चंस कैसे करेंगे,
सेंट्रीफ्यूगल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये मान लो लेंथ एल है, तो रेडियस कितने का बनेगा, एल का बनेगा इस पॉइंट सी के लिए। हाँ जी। तो हाँ हाँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, एम, मान मास नहीं मानते हैं, मतलब एक्सेलरेशन मान लो। तो ओमेगा स्क्वायर एल, ये बाहर की ओर लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ। है ना। ओमेगा सी, हाँ। तुम ओमेगा सी बोल रहे हो। अच्छा ओमेगा बी, तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, ओमेगा बी स्क्वायर इंटू एल बाई टू लगेगा। ओमेगा 20 को एल बाई 2। और इसके ऊपर कितना लगेगा, जीरो। हाँ जी। ठीक, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं क्या कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पॉइंट सी का ज्यादा होगा, पॉइंट बी का कम, और सबसे लिस्ट पॉइंट ए का। हाँ। ठीक, जरूर। तो बॉडी तो टूट जानी चाहिए ऐसे केस में, बॉडी में तो स्ट्रेचिंग आ जाना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट का मतलब ये एक ये रॉड हो गया, मान लो ये लेंथ एल से मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया है ना, ये रॉड है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ की एक्सेलरेशन है जीरो, यहाँ की लिटिल बिट पॉजिटिव, यहाँ की ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव हो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा और पॉजिटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो जैसे मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये पार्टिकल को इधर खींच के लेके जाएगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा खींचेगा। खींचेगा तो खींचेगा। मतलब बॉडी तो स्ट्रेच कर जाएगी ना। हाँ जी। फिर बॉडी स्ट्रेच कर रही है क्या, इन रियलिटी रॉड इज चेंजिंग और इट्स शेप, क्योंकि ये रिजिड रॉड है तो मेरे को नहीं लगता कि बॉडी स्ट्रेच करेगी। स्ट्रेच करेगी, और बॉडी तो स्ट्रेच करेगी नहीं। तो अगर बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है तो क्या ये सारे जो तुमने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस बताएं, उन सारे एक्सेलरेशंस की वैल्यू हरदम सेम होनी चाहिए, बोलो, सेम होनी चाहिए। अगर अगर तुम अभी बोल रहे हैं कि बॉडी स्ट्रेच नहीं हो रही है, बॉडी स्ट्रेच हो रही है क्या, नहीं ना। तो बॉडी नहीं। अगर अगर स्ट्रेच नहीं होगा तो ये सारे जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होते होंगे उनको सेम होना होगा या अलग अलग होना होगा, सेम होना पड़ेगा। because the bodies are not changing its position, the particles are not changing its position. Are you able to get me or not? या। And that means what, that their omega, these omegas must be same, not different. Are you able to get me or not? That is, the centripetal acceleration is only going to be same when the every point rotate with the similar omega. I'll tell you once again, सिंपल सी बात है कि सर अगर मान लो ये अगर एक रॉड दे दूं आपको, ठीक है, अगर ये रॉड दे दूं आपको, आपके पास तीन पॉइंट्स दे दिया ए बी सी, रॉड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट से बना हुआ है, अगर मैं हर पॉइंट का अलग अलग ओमेगा मान लूं, तो हर पॉइंट के पास एक अपना अपना एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल्स को इधर उधर मूव करेगा। लेकिन अभी जो बॉडी है वो एक रिजिड बॉडी है, इसका मतलब पार्टिकल्स क्या है, अपनी जगह पे फिक्स, इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है बेसिकली कैसी है, जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे पॉइंट्स एक सिमिलर ओमेगा के साथ चले। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट, या। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी, यस। right or not? So remember, if it is a rigid body, if it is a rigid body, then every point of the rigid body have the same angular velocity omega. Got it? So let's suppose if I have any kind of disk, मान लो ऐसे मैंने एक डिस्क बना ली है ना, एक रिजिड बॉडी मान ली, और इसको मैं ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ, ऐसे पकड़ के एक एक्सिस मान ले रहा हूँ, लेट्स सपोज आई कंसीडर एक्सिस लाइक दिस वे, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं इस रिजिड बॉडी को, इस एक्सिस को ऐसे ओमेगा से घुमाने लगूंगा, तो हर पॉइंट जो यहाँ पे मौजूद है ना, हर पॉइंट के पास जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, ओमेगा रहेगी, कैसी रहेगी, ओमेगा। आर एबल टू गेट मी और नॉट, किसी भी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो नहीं सकती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी। सो फॉर रिजिड बॉडी, अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उसका क्या कंडीशन है, एवरी पॉइंट have same
velocity, that means this implies the relative velocity between two particles is always zero. Relative velocity between two particles is always zero in rigid body. Are you able to get me or not? मेरी बातें तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? मजा आया क्या? अब कोई गलती करोगे? नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये सारे क्या होंगे? जीरो और एक दूसरे के इक्वल होंगे। आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है, चलो आगे बढ़ो क्या? ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलो फिर एमसीक्यू का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दे रहा हूँ, है ना? थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मान लो एक रॉड, क्या क्या? ठीक है, मान लो एक रॉड है ना। इस रॉड को मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूँ, सॉरी, इस रॉड को मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूँ, और इस रॉड के साथ मैं एक थ्रेड लेकर, एक ऊपर वाली थ्रेड ली, एक नीचे से थ्रेड ली, ठीक है, और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ कैसी है? सेम। ठीक। और मैं इसके साथ एक ब्लॉक ऑफ मास m को अटैच कर दे रहा हूँ। आर एबल टू गेट मी नॉट? मान लो लेंथ ऑफ द थ्रेड इज हाउ मच? l। तो देखो ये पार्ट मान लो a हो गया, ये पार्ट मान लो o हो गया, और ये पार्ट मान लो b हो गया। ठीक। इज दिस क्लियर? मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक। तो क्वेश्चन है ऑप्शन ए, टेंशन इन AO is more than tension in OB. B, option B is tension in AO is less than tension in OB. Option C, both tensions are same. Option D, none of this. Tell me. Question is simple. I took a rod, then I attached the thread at the top end and the down end, and I am rotating this particular rod with angular velocity omega. विद दैट थ्रेड आई अटैच द मास एम। तो ध्यान से सोचो, अगर तुम एक रॉड लोगे, उसको दो धागों से मैच करके एक मास एम को अटैच कर दोगे, तो मास एम भी ऐसे गोल 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 चक्कर काटेगा या नहीं काटेगा? करेगा ना, इट विल आल्सो रोटेट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो, अब बात है कि यहाँ पे दो थ्रेड्स है, तो इधर एक टेंशन होगा, ठीक है, इधर एक टेंशन होगा, और इधर भी एक अलग टेंशन होगा। आर यू एबल टू गेट मी? दो टेंशन होंगे। तो मैंने दोनों थ्रेड में अलग अलग टेंशन का नाम दे दिया। इसमें जो टेंशन प्रेजेंट है उसका नाम है एओ या ओए, और इसमें जो टेंशन प्रेजेंट है वो है ओबी। बताना है तुम्हें एओ की वैल्यू ज्यादा होगी, आउट ऑफ दीज विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे खोपड़े को खोल रहे हैं या नहीं खोल रहा है? इज दिस क्वेश्चन खोल रहा है ना? बस, फिर तो यही चीज चाहिए होता है ना? अब लग रहा है कि नीट हो जाएगा आराम से। एक और हिंट देता हूँ, चलो मान लो ये एंगल थीटा दे दिया गया, ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक, बस अब बताओ क्या होगा?
बनेगा। कुछ तो गेस करो क्या, किधर का टेंशन ज्यादा होना चाहिए, ऊपर वाले थ्रेड में या नीचे वाले थ्रेड में? या दोनों में इक्वल होना चाहिए? शायद दोनों में एक ही होना चाहिए। लॉक करूं? ऑप्शन सी, बताओ। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, यस, लॉक ओके, करो। अब एक चीज बताओ। सृष्टि तुम एकदम मतलब ऐसे ऐसे, मैं ना मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंकूंगा ना, तुम मतलब ऐसे थोड़ा मतलब एकदम सीधा बोलते हो लॉक कर दो सर, जो होगा सब देख लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लो टी ए ऑफ ओ है ये इधर है ना, ये हो गया हाँ, टी बी ऑफ ओ, ये हो गई अपन ओके। की मास। तो देख, इस मास का तो एक वेट होगा ना, एम जी, इजंट इट? हाँ होगा या नहीं होगा? अच्छा, जब ये रॉड ओमेगा से घूम रहा है और मास एम ऐसे बीच में अटैच्ड है, तो इसका मतलब एम भी ओमेगा से घूमेगा। जरूर। जरूर। हाँ तो मान लो ये जो हाँ रेडियस है यहाँ से लेके, और एम का जो सर्कुलर पाथ होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ होगा ना, वेयर दिस विल बी माय रेडियस। तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ लगेगा ना। हमें तो सेंट्रीफ्यूगल के बारे में ही बात कर रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ रेडियस आर। तो तुम्हें मैं कैलकुलेशन भी बता दे रहा हूँ, अगर ये एल है, ये थीटा है और ये आर है, तो आर इज नथिंग बट एल कॉस थीटा, बिकॉज या cos हाँ theta is based by hypotenuse, are you able to get me or not? तो यस। ध्यान से देखो, अब जरा सोचो जरा, अब देखो अगर ये मान लो थीटा है तो इधर टेंशन का एक और कंपोनेंट आएगा टी ऑफ ए ओ साइन थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा टी ऑफ ए ओ कॉस थीटा, हाँ है कि नहीं? हाँ अच्छा, जब तुम टी ऑफ ए ओ cos थीटा sin थीटा कंसिडर कर लिए, तो अब बचा टी ऑफ बी ओ के बारे में। ये भी तो एंगल थीटा है ना, तो टी ऑफ बी ओ जी। इधर आएगा, टी ऑफ बी ओ साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, टी ऑफ बी ओ cos थीटा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? यस तो मिल यस गया ना तुम्हें रिलेशन, देखो तो जरा, कि अगर बॉडी मतलब ये सर्कुलर पाथ को एक्सटेंड कर रहा है, तो मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स होना चाहिए, और लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो तुम इक्वेशन क्या लिखे, टी ऑफ ए ओ साइन थीटा इज नथिंग बट टी ऑफ बी ओ साइन थीटा प्लस हाउ मच, एम जी। तो ध्यान से देखो, टी ऑफ ए ओ पहले तो ये टेंशन को बैलेंस कर रहा है, साथ में वेट को बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा? तो जरूर कर बेसिकली रहा है। इसका मतलब क्या है कि टेंशन इन अपर थ्रेड इज मोर देन टेंशन इन लोअर थ्रेड। सेकेंड इक्वेशन क्या बन एक गया? एक मिनट। हाँ, हाँ राइट राइट। हाँ इज दिस क्लियर और नॉट? या क्लियर। इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास दो दो इक्वेशन आ गए, दोनों में यही मालूम चल रहा है कि टी ऑफ ए ओ कैसा है, बहुत ज्यादा है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? बिकॉज हियर आल्सो टी ऑफ ए ओ cos थीटा इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी ऑफ बी ओ cos थीटा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? यस। तो सर इन क्वेश्चंस में ट्रिक क्या है? इन क्वेश्चंस में ट्रिक कुछ नहीं है, बस ध्यान से बस इधर देखो। इन क्वेश्चन में इतना नहीं सोचना है, इन क्वेश्चन का अगर मान लो दो थ्रेड्स है ना, तो थ्रेड में मास अटैच है, तो बस मालूम चल रहा है ना कि इसका वेट नीचे एमजी भी है, ऊपर से नीचे में एक टेंशन टी है, इसके लिए तो बस ऊपर में एक टेंशन टी लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये अच्छा टेंशन ये टी, हाँ ये मुझे मेरा क्या सब फोर्सेस और लिखना चाहिए ना? लिखना चाहिए, यस। स्पेसिफिकली वर्टिकल केस में, अगर तुम्हें टेंशन के बारे में बात हो रहा है तो वर्टिकल जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरह से देखना होगा तुम्हें। आर यू एबल टू गेट मी? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा कि दो थ्रेड्स थे, दो थ्रेड के साथ मास अटैच था, तो इसका मतलब क्या चल रहा है बालक, कि भैया अगर आप टेंशन टी ऊपर में इसमें देखते हो, मास एम की वेट देखते हो, और इसकी टेंशन टी डैश देखते हो,
इसका मतलब ऊपर की जो टेंशन है वो दो अलग अलग चीजों, दो अलग अलग नीचे के नॉर्मल मेन फोर्सेस को बैलेंस कर रही है या नहीं कर रही। कर रही है। बस इसका मतलब ऊपर के थ्रेड में ज्यादा टेंशन है एज कम्पेयर टू डाउन डाउन थ्रेड। 99% 99% क्या लॉक करेंगे ऑप्शन सी, बट 1% जो लोग है ना, 0.1% वो कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे, ऑप्शन ए, बिकॉज उन्हें मालूम है कि वेट भी बैलेंस होनी चाहिए वर्टिकल में। आर एबल टू गेट मी और नॉट। तो सिचुएशन देखो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, अगर वर्टिकल है तो वेट तो डोमिनेट करेगा ना, हाँ, वेट को कंसिडर तो करना ही करना पड़ेगा। ही पड़ेगा। आर एबल टू गेट मी और नॉट। तो बस तुम्हारे पास इक्वेशंस मिल गया। अब तुम देखो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आर की वैल्यू पुट करो, एल कॉस थीटा, और तब तुम्हें लास्ट में जाके टेंशन का इक्वेशन मिल जाएगा। वो टेंशन तुम्हें कल मेरे को शो करना है दिखा के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ ए ओ एंड टी ऑफ बी ओ। सर कल क्लास होगा? कल क्लास नहीं, एटलीस्ट यू कैन शेयर मी द सॉल्यूशन ना। Sir, are you going to be taking class tomorrow or Sunday? Sunday, see, I'm not going to take on both days, Saturday and Sunday this week, because tomorrow I'm going out. I'm not going out. I'm going to shift my home. I told you already, na, that I have to shift my home and all. और Sunday? Sunday भी नहीं होगा। Sunday, I'm in Delhi actually. I'm going to Delhi Sunday for 2 hours. So I have to meet in Delhi University my professor to take my certificates. Okay, so I can take on Monday if it is possible. Will you be available on Monday? Let me check my schedule. Okay. Yeah, Monday I'll be available. Then I can be able to take on Monday if possible. I think I'll be able to take on afternoon session or whichever session. I'll already inform you. So this time Sunday, Monday, and Saturday, Sunday, I'm busy. Okay. After that, I have told your mom that I'm just shifting my home till 10th of December. I have a busy schedule. After that, I have a total free schedule. Okay, अच्छा, because even in this I have my brother's marriage also within this 10th of December only. Okay, so I think your vacation starts on 8th December, no? 8th December, Yeah, so yes. that will be a very great thing because I'll have a free schedule after 10th December. Yeah. Okay, are you able to understand this all easily? Yes. So tomorrow will means when I'll have the class, either on I'll inform you, so be prepared for Tuesday basically. Tuesday, Tuesday, no, not Tuesday, Monday I have a flight at You said मंडे आप, you said Monday. हाँ हाँ हाँ, आपने कहा मंडे। हाँ मंडे मंडे मैं क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि मंडे मेरी हाँ फ्लाइट है 3:30 बजे की। ठीक है, मैं मंडे क्लास ले लूंगा, है ना। हाँ, ठीक है, तो मंडे क्लास ले लूंगा, फिर मैं ट्यूसडे को भी शायद क्लास ले लूंगा। ओके, ठीक है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो होमवर्क के लिए क्या करना है? होमवर्क तुम वेट करो ना मंडे का। I'll share a worksheet with your mom. Okay, just check that. I'll share the worksheet on your email. Just take a printout and do that. Okay. अच्छा, हाँ, बस बस इसी कॉन्सेप्ट पे, वेलोसिटी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलेगा। चलेगा, वर्कशीट ठीक है, चलेगा। हाँ, बस 15 क्वेश्चंस का वर्कशीट रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, ये डिफरेंशिएशन वगैरह से रिलेटेड है, ये ओमेगा वगैरह सारा अभी से लेके जो लास्ट तक अपन ने पढ़ा है, उन सबकी रिलेशंस के बारे में जो जो फॉर्मूला हो सकते हैं उनके ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। उसके बाद ये जो आते हैं ये मोशन के क्वेश्चन आते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन का ये सब क्वेश्चन हो गया, इसका एक अलग से मैं वर्कशीट दूंगा। ओके, हाँ, ठीक, तो तुम्हें कल फिर भी हम फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाऊंगा। तुम देखो ये सब क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में नहीं मिलेंगे, है ना। तुम जो पढ़े हो सर्कुलर मोशन का उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और बस मेरे हाँ, सामने तुम्हें क्वेश्चन बनाने हैं। मैं जैसे जैसे तुमसे मैं पूछ रहा हूँ ना, वेदर यू लॉक इट और नॉट, वहां पे तुम्हें अब सही आंसर देना है, ट्राई करना है कि सही आंसर, टाइम लो, इक्वेशंस लिखो, उसके बाद सही आंसर दो, है ना। हाँ, देन हाँ, आई विल मेक यू प्रूव। सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, अब ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, तुम्हारे नीट में 1 ही मिनट रहता है और मैं नीट का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। ओके, ठीक है। ठीक है, I'll not give you more than 1.5 minutes. 1 point means 1 minute and half seconds. Means 1 minute and 30 seconds. That's all. And in that you'll have to either give me the concept, how to do it,
or you'll have to say me the correct answer. ठीक है, चलो, चलो फिर, ठीक, मिलते हैं कल मंडे को, थोड़ा बाय बाय, सी यू तब तक के लिए, ओके, because I have to go to, I have to pack my bags actually, so many bags, I'm just preparing all my bags and all to just shift it, ठीक है, चलो, मिलते हैं फिर, बाय बाय।